صبح سے بارش کا سلسلہ آج جاری ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ نشتر ٹاؤن میں سب سے زیادہ 61 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ جیل روڈ، مغل پورہ، مال روڈ میں جلد ہلیک ہو گیا۔ کینال روڈ، مسلم ٹاؤن، کلوا چوک اور اطراف میں بادل کھل کر برسے۔ لاہور میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیش گوئی کی گئی ہے۔ موسم کا مزید احوال بتائیں گی سمرا فاطمہ ہمارے ساتھ ہے۔ جی سمرا، بتائے گا آنے والے دنوں میں موسم کیسا ہوگا، کیا پیش گوئی کی جا رہی ہے؟ جی بالکل، شہر لاہور کے موسم کی بات کر لی جائے تو باہر کا موسم آج بہت ہی حسین اور خوشگوار ہے۔ آسمان پر کالی گھٹائیں موجود ہیں جو وقفے سے برس رہی ہیں۔ آسمان پر پرندے بھی چہچہا رہے ہیں، جبکہ درختوں کے لہلاتے پتے بھی بہت ہی حسین منظر اس وقت پیش کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں جو موسم کی رنگینی اور رعنائیوں میں چار چاند لگانے کا باعث بن رہی ہیں۔ اس وقت بھی مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کہیں ہلکی بارش ہو رہی ہے، کہیں تیز تو موسلادھار بارش ہو رہی ہے اور مختلف علاقوں میں بوندا باندی بھی ہو رہی ہے۔ میں اس وقت جیل روڈ پر موجود ہوں اور ابھی بھی یہاں پر بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک بات کر لیجیے تو شہر لاہور میں 11 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے، جبکہ سب سے زیادہ بارش لاہور کے علاقے نشتر ٹاؤن میں 43 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جیل روڈ، مال روڈ، مغل پورہ، ٹاؤن شپ کوٹ لکھپت میں بھی بادل برس رہے ہیں، جبکہ مولانا شوکت علی روڈ، وحدت روڈ، مسلم ٹاؤن، کلمہ چوک، ہربنس پورہ، تاج پورہ کے اطراف میں بھی ابر رحمت برسنے کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی پیشگوئی کی جا رہی ہے کہ آج دن بھر بارش کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا۔ کبھی بارش تھم جائے گی تو کبھی پھر سے برسنا، بادل شروع ہو جائیں گے۔ درجہ حرارت میں بارش کے باعث نمایاں طور پر کمی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے۔ اس وقت درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ آج کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 70% تک ہے اور 16 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث نہ حبس ہے، نہ گرمی ہے، نہ گھٹن محسوس کیا جا رہا ہے، بلکہ موسم دلکش اور خوبصورت اس وقت محسوس کیا جا رہا ہے۔ بارشوں کا سلسلہ 24 جولائی تک اسی طرح سے جاری رہے گا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی شہر کا مطلع ابرآلود رہنے کی پیشگوئی کی جا رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسی طرح سے جیسے آج بادل برس رہے ہیں، آئندہ چند روز تک بھی وقفے سے شہر لاہور میں بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مختلف نشیبی علاقوں میں بھی پانی جمع ہو چکا ہے، تو شہریوں کو احتیاط کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ خاص کر چھوٹے بچوں کو یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ نشیبی علاقوں کی طرف جانے سے گریز کریں، بجلی کی کھمبوں اور تاروں سے دور رہیں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہری احتیاط بھی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور موسم سے لطف اٹھاتے بھی دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ اس وقت شہر کا موسم جو ہے وہ بہت ہی اچھا محسوس کیا جا رہا ہے۔ تو محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی جہاں متعلقہ اداروں کو تاکید کی جا رہی ہے، وہیں شہریوں کو بھی احتیاط کرنے کا کہا جا رہا ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ آج بھی شہر لاہور میں مزید 30 سے 80% تک بارش کا امکان موجود ہے، جو آئندہ آنے والے دنوں تک اسی طرح سے جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ سمرا تھی، موسم کا تفصیلی احوال بتا رہی تھی۔ جبکہ شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کے باعث بجلی کا ترسیلی نظام بھی متاثر ہے۔ لیسکو کے 150 سے زائد فیڈرز پر تکنیکی اور فنی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ تکنیکی خرابیاں پیدا ہونے سے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہے اور بجلی کی سپلائی معطل ہونے سے صارفین کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد بجلی کا ترسیلی نظام بیٹھ چکا ہے۔ لیسکو کے 150 سے زائد فیڈر پر تکنیکی اور فنی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ تکنیکی خرابیاں پیدا ہونے سے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی مکمل طور پر معطل ہے۔ بجلی کی سپلائی معطل ہونے سے صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ جہاں پہ بارش رحمت ہوتی ہے، وہیں پہ شہریوں کے لیے یہ زحمت بن جاتی ہے۔ بجلی کا ترسیلی نظام اس وقت بری طرح متاثر ہو چکا ہے اور شہر بھر میں بتی گل ہے۔ لیسکو کے 150 سے زائد فیڈر پر تکنیکی اور فنی خرابیاں پیدا ہیں۔ تکنیکی خرابیاں پیدا ہونے سے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی اس وقت معطل ہے اور بجلی کی سپلائی معطل ہونے سے صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ادھر شہر میں مسلسل بارش کے باعث متعدد نشیبی علاقے بھی زیر آب آ چکے ہیں۔ جل تھل ایک ہونے سے گلیاں، بازار زیر آب آ گئے۔ بارش کے باعث گلیوں میں تقریباً 1.5 فٹ پانی جمع ہو گیا ہے۔ محمد نگر کی گلیوں میں جمع ہونے والے پانی میں بچے نہانے لگے ہیں۔ مزید صورتحال سے اپڈیٹ کریں گی فریحہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جی فریحہ۔
बिल्कुल शहर भर में जो है वो मुसलसल बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की गलियों में पानी जमा होना शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं गढ़ी चौक के इलाके मोहम्मद नगर में मौजूद हूँ, जहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 फुट जो है वो पानी जमा हो गया, जिससे आमदरफ में तो मुश्किलात का सामना है ही है। साथ ही साथ यहाँ पे बीबी पाक दामन भी है। यहाँ के रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा कि पानी कितनी देर यहाँ पे जमा रहता है? हमारे जी अभी अस्सलाम वालेकुम, हमारे इतनी मुश्किलात है कि हमारा कारोबार जो है ना वो 5-5, 6-6 घंटे बंद रहता है। वो पानी कोई इधर निकालने वाला नहीं आता। मैं वैसे अंजमन ताजरान का बीबी पाक सदर हूँ, और ये सफ़र का महीना चाह रहा, लोग बाहर से पैदल आते हैं, जो गंदा पानी से अंदर ज़ाहिर इस्लाम करने जाते हैं। हम ये कहते हैं मरियम साहबा को, चाहे जिसको भी, कि यहाँ पे डिप्टी स्पेशल लगी जाए, को जो दुकानदार हैं वो परेशान ना हो, कारोबार बंद रहता है, वो इतने खर्चे होते हैं, वो परेशान रहते हैं। ये लिहाजा आपकी मेहरबानी है कि ये हमारा पानी निकला जाए। ये यहाँ के रिहायशी कारोबारी अफराद हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि जब भी बारिश होती है तो इन गलियों में पानी जमा हो जाता है और तकरीबन 4 से 5 घंटे जो है वो पानी जमा रहता है, जिससे कारोबार बुरी तरह मुतासर होते हैं। इसी रोड पे बीबी पाक दामन भी है और यहाँ से ज़ायरीन गुजरते हैं। उनका कहना है कि बारिशी पानी के अंदर सीवरेज का पानी भी जो है वो मिक्स हो गया, पानी नापाक है, तो ज़ायरीन और यहाँ से गुजरने वाले जो है वो गंदे पानी से गुजरने पर जो है वो मजबूर हो चुके हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर निकासी आपका जो है प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, ताकि जैसे ही बारिश हो पानी जो है वो साथ साथ निकलता रहे, कारोबारी सरगर्मियाँ भी जो है वो मुतासिर ना हो और यहाँ से गुजरने वालों को भी जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो ना करना पड़े। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फरीहा। शहर में मूसलाधार बारिश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बारिशों के पेश नज़र इंतजामिया मुतल्लिक़ा इदारों को अलर्ट जारी। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मानसून बारिशों की मॉनिटरिंग की हिदायत की गई है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की अर्बन फ्लडिंग के सद्देबाब के लिए दरकार पेश की इक़दामात की भी हिदायत सामने आई हैं। क्या हिदायत जारी की गई हैं? राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने बारिशों के पेश नज़र इंतजामिया और दीगर मुतल्लिक़ा इदारों को अलर्ट जारी कर दिया है और तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मानसून बारिशों की मॉनिटरिंग की हिदायत कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब का तमाम अजला में बारिशी पानी के बरवक्त निकास के लिए वासा मशीनरी की दस्तयाबी यकीनी बनाने का हुक्म, जबकि अर्बन फ्लडिंग के सद्देबाब के लिए दरकार पेश की इक़दामात की हिदायत भी कर दी गई है। जिला पंजाब का तमाम शहरों के छोटे बड़े इलाकों में पानी की फौरी निकासी आपको यकीनी बनाने का हुक्म भी सामने आया, जबकि आवाम को मुश्किल और परेशानी से बचाने के लिए बारिशी पानी खड़ा ना होने दिया जाए, ये हिदायत की गई है। जबकि जिला पंजाब ने कहा है कि मानसून बारिशों की वजह से आवाम को दरपेश मसाइल का अंदाजा है, फौरी अजाला यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। लाहौर समेत तमाम अजला में बारिशी पानी की निकासी में गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी राव दिलशाद हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में बारिश के पानी की निकासी के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो चुकी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर अली एजाज का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। जीपीओ चौक, मॉल रोड और लक्ष्मी चौक और अतराफ का जायजा लिया। बारिश के बाद मुख्तलिफ मकामात पर निकासी आप के ऑपरेशन का भी मुआयना किया। वासा की फील्ड टीमों ने डीसी लाहौर को निकासी आप बारे ब्रीफिंग भी दी है। इस हवाले से अपडेट करेंगे ताहिर खान हमारे साथ हैं। जी ताहिर, बताएगा दौरे का अहवाल। जी बिल्कुल, मानसून के जोरदार स्पेल के बाद डिप्टी कमिश्नर मुतहरिक हुए और कैप्टन टैट अली जाज इस वक्त शहर के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा कर रहे हैं। मुख्तलिफ जो मरकजी शाहरा हैं वहाँ पे निकासी आपका जायजा ले रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लक्ष्मी चौक का भी उन्होंने दौरा किया है। अजहर, बताइएगा, लक्ष्मी वो मुकाम है जहाँ माजी में देखते थे बड़ा पानी खड़ा होता था, इस दफ़ा क्या तैयारी है? जी बिल्कुल, इस दफ़ा ना हमारी पिछले सालों से बहुत बेहतर तैयारी है और अब हमने जो कुछ मेजर्स लिए हैं वो ये लिए हैं कि हमारे पास 18 अंडरग्राउंड वाटर टैंक, स्टोरेज टैंक्स हमने बना दिए हैं। जो लो लाइंग एरिया से वहाँ एक दफ़ा पानी आ जाता था, जैसे लक्ष्मी यहाँ घुटने पानी होता था, आज आप देखें सिचुएशन बेहतर है क्योंकि ये अंडरग्राउंड टैंक जो है ये बन गया है, सारा पानी उसमें स्टोर हो जाता है। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि जो रेन वाटर है वो रिचार्ज भी करती है और जो एरियाज़ हैं वो ड्रेन भी हो जाते हैं। एक तो वो काम हमने किया है। उसके बाद हमारे 24 के करीब जो वासा के कैंप्स हैं वो इस्टेब्लिश्ड हैं। हमारी सारी मशीनरी मुतहरक है, बोजर्स, शक्कर मशीन्स, वाटर पम्प्स वो हमने अपनी जगहों पे पहुंचा दिए हैं और हमारी तमाम इंतज़ामी जो अमला है, ऑफिसर्स हैं, उनको हमने हिदायत दी है कि वो फील्ड में मौजूद रहें और एज सून एज पॉसिबल जहाँ जहाँ पॉन्डिंग होती है, जहाँ जहाँ पानी खड़ा होता है उसको रिमूव किया जाए। और बाकायदा चीफ मिनिस्टर इसको मोनिटर कर रही हैं और जो हम टाइम लैग होता है किसी भी इलाके की क्लियरेंस का, उसके साथ रिपोर्ट सबमिट हो रही है और उसके साथ साथ उसकी क्लियरेंस भी मोनिटर हो रही है। सर, फिलवक्त तो मानसून का बहस आगाज है, अभी जाहिर है 1-1.5 महीना और भी होगा, तो चैलेंजेस आपको कहाँ पे लग रहे हैं? कौन से
ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे चैलेंज दरपेश हो सकता है इंतजामिया को? देखें, दो तरह के चैलेंजेस होते हैं। एक अर्बन फ्लडिंग का चैलेंज होता है कि अगर शहर में क्लाउड बस्ट आ जाए तो एक दफ़ा पानी काफ़ी तादाद में आता है, फिर उसकी क्लियरेंस का टाइम होता है, वो एक चैलेंज होता है। बट हमारी तैयारी मुकम्मल है, इंशाल्लाह डीसिल्टिंग भी की हुई है, मशीनरी भी एक्टिव है, अमला भी एक्टिव है। दूसरा होता है रिवराइन फ्लड का, जो कि उसमें इंडिया की बारिशों का अमल दरामद भी होता है और उसमें जो यहाँ पे जो बारिशें होती हैं उनका भी असर होता है। तो जो रावी रिवर लाहौर को लगता है उस हवाले से हमें होता है कि कहीं उधर नुकसान ना हो, तो उस हवाले से भी तैयारी इस तरह के प्रोटेक्शन बंद जो कि पिछले साल नहीं थे, जिससे थीम पार्क व्यू या इस तरह की सोसाइटीज इफेक्ट हुई, तो वो अब इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि नहीं होंगी, क्योंकि वहाँ प्रोटेक्शन बंद काफ़ी हद तक मुकम्मल कर लिया गया और उसको तेज़ी से काम जारी है ताकि उसको बिल्कुल 100% इफेक्टिव किया जा सके। इसके अलावा जो इरिगेशन के वाटर जो उनके प्रोटेक्शन बंद थे, जो डैमेज हुए पिछले साल, उनकी भी रिपेयर मुकम्मल कर ली गई है। इसके अलावा जो रावी का ब्रिज है और जो रेलवे का ब्रिज है उसके लिए भी हमने मशीनरी मोबिलाइज कराई है ताकि उसकी डीसिल्टिंग करें और जो ब्रिजेस की सेफ्टी है उसको बेहतर बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर कैप्टन अली जाज हमें बता रहे थे कि वाटर पॉन्डिंग का जो एक चैलेंजेस दरपेश होते हैं उस वाले इंतजामिया क्या किरदार अदा कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर। पंजाब वासा का मरकजी कंट्रोल रूम मुकम्मल तौर पर फाल है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की अफसरान को फील्ड में रहने की हिदायत। हंगामी सूरत हाल से निपटने इंतजाम हर वक्त मुकम्मल रखे जाएं, सेक्रेटरी की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने यह भी कहा है तमाम मशीनरी आलात को हर वक्त मुकम्मल फ़ाल रखा जाए। पंजाब वासा की मरकजी हेल्पलाइन 1334 को 24 घंटे फ़ाल रखने की हिदायत। शहरी अर्बन फ्लडिंग नकासियाब से मुतल्लिक शिकायत फौरी हेल्पलाइन के जरिए इंदराज कराएं। शिकायत का फौरी अजाला बर वक्त नकासियाब हर सूरत यकीनी बनाई जाए, ये हिदायत जारी की गई हैं सेक्रेटरी हाउसिंग की जानिब से। और कहा गया कि मानसून के दौरान फौरी रद्द अमल दिया जाए, मुसलसल मॉनिटरिंग को यकीनी बनाया जाए। तमाम वासास किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर अलर्ट रहें। तो पंजाब वासा का मरकजी कंट्रोल रूम मुकम्मल तौर पर अब फ़ाल है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की अफसरान को फील्ड में रहने की हिदायत जारी की गई हैं। अभी आपको बताएं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है। हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती पर इत्तेफाक। हाई कोर्ट की 10 खाली नशिस्तों के लिए 24 उम्मीदवारों में से 10 नामों की मंजूरी दी गई है। एडवोकेट जनरल पंजाब मोहम्मद अमजद परवेज लाहौर हाई कोर्ट के जज नामजद किए गए हैं। फेडरल प्रोसिक्यूटर जनरल गुलाम सरवर निहंग लाहौर हाई कोर्ट के जज नामजद किए गए हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। जी मलिक अशरफ, और किस किस को जज तैनात किया गया है? जी बिल्कुल, ये जुडिशल कमीशन का अहम इजलास हुआ है जिसमें लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती पर इत्तेफाक किया गया है और लाहौर हाई कोर्ट की 10 खाली नशिस्तों के लिए 24 उम्मीदवारों में से 10 नामों की मंजूरी दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ जिसमें ज़राए के मुताबिक एडवोकेट जनरल पंजाब मोहम्मद अमजद परवेज लाहौर हाई कोर्ट के जज नामजद किए गए हैं। फेडरल प्रोसिक्यूटर जनरल गुलाम सरवर निहंग लाहौर हाई कोर्ट के जज नामजद किए गए हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा लाहौर हाई कोर्ट के जज नामजद किया गया है। इस तरह प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फराज अली शाह को भी लाहौर हाई कोर्ट का जज नामजद किया गया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर दुगर लाहौर हाई कोर्ट के जज नामजद हुए। इस तरह बैरिस्टर मोहम्मद उस्मान गनी, राशिद चीमा, मोहम्मद अजमल खान दाहद भी लाहौर हाई कोर्ट के जज नामजद हुए हैं और एडवोकेट शीरी इमरान भी लाहौर हाई कोर्ट की जज नामजद हुई है। इस तरह एडवोकेट खालिद इब्ने अजीज और एडवोकेट अमीर अजम भी लाहौर हाई कोर्ट के जज नामजद हुए हैं। सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद वज़ारत कानून और इंसाफ इन जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करेगी, जिसके बाद यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में ये जजेस जो हैं वो हल्फ उठाएंगे। नए जजेस की तैनाती के बाद लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 50 हो जाएगी और नए जजेस की तैनाती के बाद लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की खाली सामी हुई तादाद जो है वो कम हो के 10 रह जाएगी। ये जो तैनातियां हुई हैं ये मेरिट पे और इस हवाले से 26 नाम जो थे वो ज़ेरे गौर आए थे, जिसमें एक ये नाम जो है जो लाहौर हाई कोर्ट के जज नामजद हुए हैं, ये इन तमाम के नाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम की जानिब से जुडिशल कमीशन को भिजवाए गए थे। जबकि मोहम्मद शान गुल का नाम जो वकील रहनुमा है एहसन बून, उन्होंने भेजा था लेकिन वो कंसीडर नहीं हुआ, वो लाहौर हाई कोर्ट के जज के लिए उनको कंसीडर नहीं किया गया। इस तरह डिस्ट्रिक्ट सेशन जज इस्लामाबाद के हैं वो भी कंसीडर नहीं हुए और इस तरह साबिक गवर्नर पंजाब जो थे मोहम्मद रफीक रिजवाना, उनके बेटे मोहम्मद काशफ रिजवाना का नाम भी कंसीडर नहीं हुआ और पीपल्स पार्टी के जितने भी नाम बुझवाए गए थे उनमें कोई भी
कंसीडर नहीं हो सका। ये जो नाम कंसीडर हुए हैं वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जैसे मिसालिया नीलम की जानब से जुडिशल कमीशन को बुझाए गए थे, जिस पर जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत होने वाले इस इजलास में वफाकी वजीर कानून आजम लीताड़, जुडिशल कमीशन के मेंबर और पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर हैं एहसन बून इसमें शरीक हुए, और इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के अलावा दीगर जुडिशल कमीशन के मेंबरान भी इस इजलास में इसमें उन्होंने शिरकत की है। अब ये नाम जो है जिनकी आज मंजूरी दी गई है, इनकी अब जो उसका जो मुरासला होगा, वो जो उनकी समरी होगी आज के इजलास की, वो सदर पाकिस्तान को भिजवाई जाएगी वजारत कानून की जानब से, और सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद इन जजेस का नोटिफिकेशन होगा। जी, नोटिफिकेशन होगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मलिक अशरफ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे।